Students, today we are going to discuss about certain hormones which are not secreted from the exactly from endocrine glands, and these are hormones which are secreted from heart, kidney, or gastrointestinal tract. So you all know that we our body has lots of endocrine glands, and they secrete certain hormones, but hormones are also secreted by some tissues which are not endocrine in nature. For example, I am telling you with the help of this short note that there is a arterial wall of heart which secretes ANF, atrial natriuretic factor, and it reduces the blood pressure. What is its function is. And another one is juxtaglomerular cells of kidney, which produces a hormone. Hormone is peptide in nature, and that is called erythropoietin. This erythropoietin, what is the function of this erythropoietin hormone? Erythropoiesis means formation of RBC. So erythropoietin hormone stimulates the formation of RBCs, that means erythrocytes. तो RBCs बनाने का काम करते हैं. Another thing is there are few glands which are present into gastrointestinal tract. That means हमारी जो digestive tract है उसमें present होती हैं, and they are endocrine cells, and they produce four major peptide hormone. One is gastrin. Gastrin hormone जो है that मतलब gastrin, secretin, cyto cholecystokinin, gastroinhibitory peptide, these all are hormone, but basically we are talking about gastrin here. So gastrin works on gastric glands and stimulates secretion of HCl and pepsinogen. जो उसका काम होता है, ठीक है, उन्हीं के secretion को क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम ही होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करना और पेप्सिनोजन सिक्रीट करना. देन अनदर इज द सिक्रेटिन. सिक्रेटिन का काम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोक्राइन, जैसे हमने पढ़ा था. तो सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स आयन. तो बाइकार्बोनेट आयन्स एंड उसको पैंक्रियाज को सिक्रीट करने के लिए बोलती है वाटर. Then CCK cholecystokinin is the name, short form is CCK. It acts on both pancreas as well as gallbladder, दोनों पर काम करती है, and it stimulates the secretion of pancreatic enzyme. pancreas से निकलने वाले enzyme, you all know that pancreatic amylase, pancreatic lipase, trypsin, these enzymes are secreted from the pancreas. तो इन सारे enzymes को secrete करने में help करती है, as well as bile juice को भी जो कि gallbladder से secrete होता है. And GIP is another name. GIP, it is written here. GIP inhibits the gastric secretion. ये opposite काम करता है, ये किसी चीज़ को stimulate नहीं करता, it inhibits, रोकता है gastric secretion को and motility को. And several other, there are non-endocrine tissues which secrete hormone called as growth factor. कुछ एक ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर कहते हैं. नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से निकलते हैं ये, बट दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर जनरल बॉडी ग्रोथ, और जो हमारे टिश्यूज़ हैं फॉर देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ फैक्टर, तो वो भी सिक्रीट होता है. तो दीज आर सम अदर स्मॉल यू कैन से ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स hormones, and they help in our regulation of our various body functions. Now come to the another most important part of this topic, and last topic of this chapter, that is mechanism of hormone action. Students, mechanism, that means hormone कैसे work करते हैं, how they work. So there are certain mechanism of them. तो उनके कुछ काम करने के तरीके होते हैं. तो there are two ways to perform their function by hormones. तो hormones जो हैं आपके दो तरीके से काम करते हैं. तो मोस्टली इनका इफेक्ट, जितने भी हार्मोन्स का इफेक्ट है वो कहाँ पर होता है, टारगेट ऑर्गन्स पर होता है. एंड आई टोल्ड यू दैट व्हाट आर द टारगेट ऑर्गन. दैट मीन्स सपोज दिस इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड, कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, आप पिट्यूटरी भी मान लो, तो इट इज़ प्रेजेंट इनटू द ब्रेन. अब सपोज कर लो टारगेट ऑर्गन है, इसको ओवरीज पे हार्मोन को निकलवाना है इसको, तो ऑब्वियस जब इसके हार्मोन्स आएंगे और ओवरी पर फ़र्क डालेंगे तो वहाँ से हार्मोन निकलेंगे जो निकलने हैं ओवा से, ओवरी से. तो ये टारगेट ऑर्गन हुआ. दैट मीन्स कि किस ऑर्गन पर उसका फ़र्क असर पड़ेगा. तो हार्मोन मोस्टली प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज़. अब उस पर कैसे वो इफेक्ट डालते हैं, दे कैन इफेक्ट द टारगेट ऑर्गन बाय द टू मेथड्स. क्योंकि जो जहाँ पर भी सपोज, अब इनके दो तरीके हैं, दो तरीके मीन्स आइदर दिस इज़ द सेल, ये सेल है, तो आइदर दिस हार्मोन जो है, जो हार्मोन्स हैं ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कैसे करेंगे, ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट हेयर दीज हार्मोन्स कम्स हेयर, एंड यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड रिसेप्टर्स.
हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, तो उन हार्मोन्स को रिसीव करने के लिए होते हैं। तो दीज आर स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। तो आप कह सकते हो सेल के सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं, और दीज आर हार्मोन रिसेप्टर। टारगेट टिश्यू के सेल पे मैं बात कर रही हूँ, ये टारगेट टिश्यूज़ के सरफेस पर होते हैं। एंड दीज हार्मोन रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट ऑर्गन्स, एंड दे बाउंड, इनको क्योंकि हम इसको कह रहे हैं ना कि ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, तो दीज रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल ऑल्सो। तो ये यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो एक तो मैंने बताया आपको बाहर है, टारगेट सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन पर हैं, और एक टारगेट सेल के अंदर हैं। तो जो तो बाहर होते हैं इनको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, और ये जो अंदर हैं दैट आर कॉल्ड इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। तो दैट मीन्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स, वन इज आउटर साइड पे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, अनदर इज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, जितने भी जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। तो बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू द रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सपोज कर लो कोई हार्मोन यहाँ पर आया, ये वाला रेड रिसेप्टर है मैंने बनाया हुआ है, तो ये रिसेप्टर के साथ आ गया, तो इसने क्या बना दिया, हार्मोन प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, मतलब दोनों साथ साथ हैं, अभी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं अब ये। एंड ईच रिसेप्टर इज़ अ स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी स्टूडेंट्स, कि हर रिसेप्टर बहुत ही स्पेसिफिक है। ये किसी भी हार्मोन को, कितने भी हार्मोन्स को नहीं अपने साथ बाइंड करेगा। इस स्पेसिफिक का मतलब ही होता है कि किसी स्पेसिफिक स्पेशल को बाइंड करेगा। तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली, एंड हेंस रिसेप्टर्स यू कैन से दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। आप कह सकते हो रिसेप्टर्स आर वेरी स्पेसिफिक, ये केवल किसी विशेष स्पेशल हार्मोन्स को ही बाइंड करते हैं। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स लीड टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। तो अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, ये वाला हार्मोन रिसेप्टर, तो ये इनके अंदर कुछ चेंजेस ले आता है। किनके अंदर, ये टारगेट टिश्यू, जो सभी टारगेट टिश्यू है, ओवरी है तो ओवरी के अंदर, जिसके अंदर भी है टारगेट टिश्यू के अंदर जो चेंजेस ले आएगा, तो मेटाबॉलिज्म वगैरह ये कुछ भी जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं बाय द इस तरीके से हार्मोन से, क्योंकि जब वो चेंज हो गए तो जो हार्मोन चाहेगा वैसे ही तो चेंज होगा ना उसके अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर वी हैव स्टडीड दैट different kinds of hormones are there, like peptide hormone, steroid hormone, iodothyronines hormones, amino acid derivatives hormone. So here we are going to study about these two types of mechanism. So suppose we are going to study about the first kind of mechanism, that is called I am taking a little bit dark color, that is called membrane bound receptors. So hormones which interact with membrane bound receptors, normally they do not enter into the target cell. ठीक है, अब जो भी ये हॉर्मोन्स हैं ये आए, यहाँ पर ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे RR लिख देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दीज आर रिसेप्टर, हर जगह रिसेप्टर लगा हुआ है। तो जो भी ये हार्मोन इधर से आ रहा है, सपोज ग्रीन कलर से हम ले लेते हैं, ये H आ रहा है, तो ये आके R प्लस एच, दैट मीन्स हार्मोन प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये बन जाते हैं। बट ये अब बनने के बाद दे विल नॉट एंटर इनटू द सेल। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो बन गए, ये सारे मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर भी आप बना लो प्लस एच। तो दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, बट इट विल नॉट एंटर इनटू द सेल। टारगेट की सेल है ये, इसके अंदर जाना है इनको चेंज करने के लिए फंक्शंस, पर ये एंटर नहीं करते। दे जनरेट सेकेंड मैसेंजर, ये सेकेंड मैसेंजर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लाइक उनके नाम है AMP या IP3 या कैल्शियम आयन, ये इनको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं। एंड दिस रेगुलेट द सेलुलर मैकेनिज्म, और ये फिर रेगुलेट करता है, दैट मीन्स ये फंक्शंस करता है। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ functioning of these kinds of hormones. Another is that various kinds of other hormones which interact with intracellular receptors. ठीक है, मैंने बताया था कि एक तो अभी बाहर मेम्ब्रेन पे ही बात हो गई, दूसरे क्या होते हैं कि वो सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर होते हैं। तो दैट मीन्स hormones which interact with the intracellular receptors, these are steroid hormones, iodothyronines, etc. तो mostly they regulate the gene expression or chromosome functions by interaction of hormone receptor
कॉम्प्लेक्स विद जीनोम, क्योंकि ये तो सीधा अंदर आ गए ना, सेल के अंदर ही आ गए, और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, डीएनए, न्यूक्लियस, ये सब कुछ होता है, तो ये इसी के साथ में डायरेक्ट जो है वो अटैच कर जाते हैं। सपोज ये हार्मोन है तो ये यहाँ पे रिसेप्टर, तो ये यहीं पे सीधे आ जाएंगे, इनके साथ ही आकर के अटैच हो जाएंगे, तो ये भी सीधा ये डीएनए के पास ही आ गए, न्यूक्लियस के पास ही आ गए। तो ये तो सारे फंक्शन जीन को रेगुलेट करके, ये क्रोमोसोम्स को आप रेगुलेट करके कर सकते हैं। तो दे फॉर्म द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद जीनोम, दैट मीन्स जीनोम इज डीएनए के साथ ही वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, एंड दे चेंज द बायोकेमिकल एक्शंस, एंड जब बायोकेमिकल एक्शंस चेंज होंगे देन दे इफेक्ट इन इट शो इन इफेक्ट ऑन टू द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स. So there are these two methods are the mechanism of hormonal action with the help of diagram. You can also see once again time. This is the first one, that is membrane bound receptor, and membrane bound receptor means hormone. ये cell ऐसे बना हुआ है, बहुत लाइट कलर का दिख रहा है. दिस इज रिसेप्टर, दिस इज हार्मोन, FSH हार्मोन है, सपोज ये यहाँ पर आया, बाइंड किया, तो इसने अपने साथ साथ क्या किया, मैसेंजर्स, दूसरे मैसेंजर्स बनाए, ये अपने आप अंदर नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स 1 हुआ, इसने सेकेंड मैसेंजर जनरेट किया, साइक्लिक AMP, इट चेंजेस, इट ब्रिंग्स अबाउट बायोकेमिकल चेंजेस एंड इट ब्रिंग्स अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस. बायोकेमिकल चेंजेस मीन्स बॉडी के अंदर की जो केमिस्ट्री उसको चेंज करना, एंड फिजियोलॉजिकल मीन्स जो आपकी बॉडी फंक्शंस को चेंज करते हैं, डायरेक्टली आपको दिखते हैं. And second one is the you have seen that it is intracellular receptor which comes inside the न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर आ गए, दिस इज़ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर आ गए, दिस इज़ द डीएनए और यू कैन से जीनोम. और ये जो हार्मोन रिसेप्टर है ये यहाँ से आके, ये हार्मोन रिसेप्टर यहाँ पर आकर ये जीनोम के साथ ही इसके बाइंड कर गया, रिसेप्टर यहीं पे थे, एंड देन दे ब्रिंग्स द बायोकेमिकल चेंज एंड देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस. So in this way the mechanism of both kind of hormone is little bit different, but it is quite easy also. Students, this is all, and today we finish this chapter, that means chemical control and coordination, and I hope you understand the chapter completely.